Assalamu alaikum. A very good afternoon to everyone. Bismillahirrahmanirrahim. I start in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, and peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is Faisal Nadeem from AMP, Association of Muslim Professionals. A very warm welcome to everyone. Today we are here for AMP Free Employability Training Program, and topic for today is soft and communication skills. I would now do a short presentation about AMP. AMP India Foundation is a non-for-profit organization registered under Section 8 of the Companies Act 2030, Government of India, for providing voluntary social services to meet the needs of underprivileged individuals, that is, upliftment of the underserved and needy through education and vocational training, employment support, medical relief, economic empowerment, student mentorship and guidance. The above services are needed to provided to needy individuals irrespective of caste, creed, and religion. Employment Assistance Act. Keeping in mind of AMP core objective of supporting the underprivileged, promoting education, and creating economic empowerment, AMP had launched a special project named Employment Assistance Cell, and today it is one of the core projects of AMP. Major EAC activities. Our major EAC activities include job fairs, job drives, employability training programs in colleges, skill training company tie-ups, candidate mobilization, skill development courses. Job fairs. Job fair is one of the flagship project of AMP, and we have successfully organized 43 plus job fairs till date. Every job fair has a participation of minimum 50 companies and 2,000 plus candidates. AMP has organized job fairs in the past in collaboration with Thane Police, Aurangabad Police, West Bengal Minority Finance Development Corporation, Andhra Pradesh State Minorities Finance Corporation, and other deputed NGOs. Job drive. Job drives are similar to job fairs but organized on a much smaller scale compared to job fairs. In a job drive, we typically invite only up to 2 to 3 corporates who have specific openings and advertise their openings profiles in order to attract the suitable candidates. Employability Training Program. ETP is developed by the AMP to assist job seekers find the right job at the right place at the right time. We team up with the colleges in different cities and conduct ETP programs online as well as offline. Our training programs will cover the following: personality development, effective CV writing, interview techniques, job searching strategies. It aims to create awareness and groom young graduates who are aspiring to be professionals. Skill training company tie-ups. AMP has partnered with reputed skill training companies like Tata Trust, Whirlpool, Tech Mahindra Foundation, etc. We have also arranged skill training melas in Mumbai by inviting around 20 skill training companies to hire and train unskilled candidates who could not pursue their higher studies after 10th and 12th standards. Candidate mobilization. AMP has mobilized candidates for various skill development courses like home appliances technicians, AC technicians, mobile repairing technicians, and solar engineering under Skill India mission in centers all across India. Our achievements: Employment Assistance Cell, 43 plus job fairs, out of which 9 online job fairs, 275 plus job drives, out of which 20 online job drives, 220 plus employability training programs, 37 online ETPs, 100 plus mock interviews in colleges, 25,000 plus candidates placed in jobs. Career Fest. Organized 6 career fairs, benefited 1,50,000 plus students. Our new initiative, empowersjob.com, connecting the right talent with the right opportunity. Empowersjob.com was launched on 6 December 2020. It is a unique job portal with comprehensive offerings introduced by the AMP India Foundation for job seekers, especially those hit by the COVID pandemic. Thank you, everyone. Now I would like to invite the trainer for today, Mr. Rahil Khan. Mr. Rahil Khan is a postgraduate in pharmacology, having over 13 years of experience in leading national and international universities as an academician. He gained additional experience through working in Indian as well as international multinational at different positions such as marketing executive, business development manager, pharmacist, and even served as a regional training manager in healthcare company. Rahil Khan is also an academic head, Jamia College of Pharmacy, and he is also a managing the editor of Indian Journal of Science and Pharma Innovations. Now I would like to invite Rahil Khan sir to please take over the session and start. Thank you, everyone. Thank you very much, Mr. Faisal, for inviting me.
and here we all work for AMP, Association of Muslim Professional, which is a non-profit organization to benefit the community, to benefit the upcoming talents of our community, to groom them. uh, I would like to start my session with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. To see this soft skills and personality development is something which is a very crucial concept which we all should adopt. अभी आजकल की लाइफ में हमको जहां भी हम काम करें, चाहे हम कोई जगह पे जॉब करें, नौकरी करें, या हम अपना कोई वेंचर शुरू करें जिसको हम कहते हैं टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, या हमारा कोई बिजनेस शुरू करें, या हम ऐसे ही मतलब लाइफ के किसी भी शोबे में जाएं, ओके, चाहे वुमेन्स हो, वो हाउस वाइफ हो, या कुछ भी हो, आजकल जो सबसे बेसिक जो चीजें हैं, एजुकेशन नेसेसरी है, नो डाउट, बट हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये हमको सिर्फ टेक्निकल चीजें ज्यादा सिखाता है। ये जो है तो हमको डोमेन नॉलेज देता है। डोमेन नॉलेज इन द सेंस कि अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसको इंजीनियरिंग का नॉलेज मिल जाएगा, कोई फार्मेसी का स्टूडेंट है उसको फार्मेसी का नॉलेज मिल जाएगा, कोई मेडिसिन का स्टूडेंट है उनको मेडिसिन का नॉलेज मिल जाएगा, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है उनको कॉमर्स का नॉलेज मिल जाएगा, कोई लिटरेचर का स्टूडेंट है उनको जो है तो लिटरेचर का नॉलेज मिल जाएगा। बट एक जो चीज कॉमनली सबको सब लोग डिजर्व करते हैं आज की डेट में, हर एक को सीखना चाहिए, हर एक के अंदर डेवलप होना चाहिए, विच इज वी नो एज लाइफ स्किल्स। अब जो सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप पहले सुना करते होंगे शायद ये वर्ड, इसको बहुत एक ब्रॉडर टर्म में आजकल यूज किया जाता है, एंड विच इज नोन एज लाइफ स्किल। अब उस लाइफ स्किल के अंदर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल भी आता है, जिसमें आपका पर्सनैलिटी इंटरपर्सनल स्किल्स आती है, जिसमें आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, उसके अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आती है, उसमें आपका जो है तो बिहेवियर आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें। ये जो सारी चीजें होती हैं ये मिलकर बनती है लाइफ स्किल्स। पहले इस बात को आप लोग समझ। अब लाइफ स्किल्स को समझना और इसको सीखना, इट इज नॉट अ डेज वर्क कि आप एक दिन में या आप एक घंटे में, एक दिन में, एक हफ्ते में आप इसको सीख सकते। इसके लिए टाइम लगता है, ओके, इसके लिए काफी टाइम लगता है और इंसान को खुद जो है तो वो टाइम डिवोट करना पड़ता है। सो दिस कुड बी अ बेंचमार्क और दिस कुड बी अ बिगिनिंग सेशन फॉर यू, बट आई प्रॉमिस यू कि आज का जो सेशन होगा वो हम उस तरह से फ्रूटफुल आपको देंगे कि जिस तरह से आपको वो चीज मिले। नंबर वन थिंग इज कि अब ये लाइफ स्किल्स को सीखना, इसके लिए टाइम देना कैसे होता है। आप अगर बेसिक्स समझ जाओगे तो आप धीरे धीरे लाइफ में जो है तो खुद ही चीजों को सीख पाओगे, उन स्किल्स को डेवलप कर पाओगे, उनको अडॉप्ट कर पाओगे, एंड देयर वुड बी अ टाइम व्हेन यू कैन आल्सो बिकम अ काइंड ऑफ फैसिलिटेटर कि आप भी स्किल्स को दूसरों तक पहुंचा पाओगे। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, जो दुनिया के बड़े से बड़े चाहे वो कोई रिसर्चर्स हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई एंटरप्रेन्योर्स हो, लीडर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, all are agreeing on one particular point that everyone should develop life skills, क्योंकि लाइफ स्किल्स का इंसान के अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है। जनरली होता यह है एजुकेशन में हमारे यहाँ पर के 22-25 साल तक जो है तो लोग कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन लेवल तक जो है तो स्टडी करते हैं, डोमेन नॉलेज हासिल करते हैं। व्हेन दे स्टेप टूवर्ड्स इनटू योर प्रोफेशनल जर्नी, लाइक कि वो कोई अपना काम शुरू करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, कहीं जॉब के लिए जाते हैं, या कहीं पर दे गो फॉर स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर्स, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उस समय पर उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि वो लोग को जो चीजें चाहिए, जैसे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, ओके, ये चीजें नहीं पता होती। सो थ्रू एएमपी वी ऑलवेज ट्राई टू develop these kind of things into the students. Now answer my one question I am asking you all, and you can write it in the chat box. कितने लोग हैं यहाँ पर जो कि जॉब करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी कंपनी में उनका डिजायर्ड या ड्रीम जॉब मिल जाए? फैसल भाई, कोई आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के? यस, yes, Misbah, Ruchar. Very good, very Everyone. good. People are writing yes, means Yes, everyone yes. is here to grab a job.
यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोग जॉब हासिल करना चाहते हैं। नाउ जॉब हासिल करने के लिए जो चीजों की जरूरत होती है, लाइफ स्किल के अंदर ये चीज आती है, हम उसको कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मतलब होता है कि ऐसी स्किल्स जो आपको जॉब करने के लिए और उससे भी पहले जॉब हासिल करने के लिए तैयार करें, वो स्किल्स हर एक में होना चाहिए। ओके, नाउ द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम लोग बहुत टू द पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे उन स्किल्स के बारे में और उन चीजों के बारे में जो आपको जॉब के इंटरव्यू तक ले जाने के लिए और जॉब का इंटरव्यू सक्सेसफुली क्रैक करने के लिए आपको काम में आएगी। क्योंकि इस वक्त आपको जल्दी अर्जेंट बेसिस पर यही दो चीजें सीखने की जरूरत है। ओके, विच आर इंपॉर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट फॉर यू। फाइन, इसके बाद में आप जैसे जैसे जॉब करोगे आप अदर सॉफ्ट स्किल्स यू कैन डेवलप। So this is me, Rahil Khan. I'm the career coach as well as an academician, and I'm going to explain you how to impress the recruiter and land your dream job today. What we are going to learn today, we are going to learn कि किस तरह से एक रेज्यूम बनाया जाए, रेज्यूम और सीवी में डिफरेंस क्या होता है, उसके अलावा इंटरव्यू टेक्निक्स क्या होती है, ये सारी चीजें we are going to learn today. This is about me. I have over a decade's experience and I help students in terms of achieving their dream jobs through, making their resumes and also to provide them soft skill training. Now the first step, if you have decided, आपका graduation खत्म हो गया है and उसके बाद में आपको अब आपने decide कर लिया है कि मुझे job करनी है, अब जो सबसे पहला काम करोगे आप, वो बनाओगे आपका जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आप खुद बनाओगे। इससे पहले के जो डॉक्यूमेंट बने हैं वो आपने मेहनत की है और वो डॉक्यूमेंट बन के आए हैं यूनिवर्सिटीज से, बोर्ड से, जैसे कि आपका एसएससी का रिजल्ट, आपका एचएससी का रिजल्ट, आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट। अब जो डॉक्यूमेंट आप बनाने वाले हो दैट वुड बी योर रेज्यूम। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, कई लोगों ने रेज्यूम और सीवी सुना होगा। Can I have the answer in the chat box? What is the full form of CV? जी फैसल भाई। Yes, curriculum vitae. Curriculum Everyone. vitae, very good, Yes. very good. So our students already know this is curriculum vitae, but very few people know कि CV और resume जो है ये दोनों एक ही चीज नहीं है। CVs are basically more extensive, and detailed version of your professional and to some extent to your personal achievements as well. जो सीवी होता है वो एक डिटेल्ड समरी होता है, एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका पूरा प्रोफेशनल और कुछ हद तक पर्सनल समरी भी आता है, जिसमें आपका जो है तो मतलब और जनरली सीवी उन लोगों का बनता है जो लोग 5 years 10 years एक्सपीरियंस्ड पीपल होते हैं, जिनका वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, जो डिफरेंट पोजीशंस पे काम कर चुके होते हैं, जो डिफरेंट पोजीशन के साथ में डिफरेंट स्किल सेट जो है तो एक्वायर कर चुके होते हैं, या डिफरेंट जो है तो व्हाट यू कैन से उनको जो है तो चीजें पता होती है। तो ये उन लोगों का सीवी बनता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अभी जैसे मैं हूँ, नाउ करंटली आई एम वर्किंग एज एन एकेडमिक हेड, आई हैव ओवर 13 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो करिकुलम विटाए बनेगा, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, मेरे पास में पब्लिकेशंस है, मेरे पास में कुछ अवार्ड्स है, मेरे पास में और भी बहुत कुछ है जो मैं वो उस डॉक्यूमेंट में बताऊंगा। और जो एक सीवी होता है वो नियरली 4 पेजेस से लेके तो 40 पेजेस तक का बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी पर्सन्स क्रेडेंशियल, कि उनके क्रेडेंशियल्स कितने हैं, क्या है, कैसे। सो ये बहुत एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। वाइल जो रेज्यूम होता है इट इज ओनली अ कपल ऑफ पेजेस डॉक्यूमेंट, एक पेज या ज्यादा से ज्यादा 2 पेज का रेज्यूम तैयार होता है, एंड इट इज अ वेरी कंसाइज एंड शॉर्ट समरी ऑफ योर प्रोफेशनल एंड योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अगर थोड़ा बहुत आपके पास में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, सपोज 1 साल 2 साल 3 साल तक का, तो वो इसमें आ जाता है, एंड इट इज ओनली ऑफ अ कपल ऑफ पेजेस, 1 पेज या 2 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार होता है, विच इज नोन एज अ रेज्यूम। एंड रेज्यूम फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इज द फ्रेंच वर्ड, उसका मतलब होता है शॉर्ट समरी। सो ये आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट तैयार होने वाला है या आप लोगों ने बना लिया होगा दैट वुड बी रेज्यूम।
तो हम लोग देखेंगे रेज्यूम के अंदर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से सेक्शंस आते हैं एक टिपिकल रेज्यूम में. बट बिफोर दैट, गोइंग टू रेज्यूम, आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड that preparation is the key. So before writing the resume, you should ask two questions to yourself. Number one is know yourself. Know yourself, अपने बारे में खुद जानिए, अपने बारे में पता करिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपके अंदर क्या स्किल सेट है, और जो भी आपके अंदर मतलब जो चीजें हैं जिनको आप बता सकते हो अपना जॉब हासिल करने के लिए, वो देखो पहले. जो वीकनेस है उनको कवर अप करो, उनको दूर करने की कोशिश करो. Then number two is know the company or the KRA. KRA is a short form for key result area. ये corporate word है जो यूज होता है कॉर्पोरेट में. इसको कहते हैं की रिजल्ट एरिया. की रिजल्ट एरिया का मतलब होता है कि आपके जॉब में आपका कौन कौन सी जगह पर आपका एरिया होने वाला है, जिस एरिया में आप परफॉर्म करोगे. जैसे आप सेल्स में परफॉर्म करोगे, मार्केट रिसर्च करोगे, उसके साथ में जो है तो सेल्स क्लोजिंग करोगे, उसके साथ में जो है तो कुछ और भी टास्क होगे वो करोगे. वो पूरा का पूरा KRA होता है जिसको आप शॉर्ट में जॉब डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हो. तो ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और जो कंपनी है, ये दोनों को पता करिए बिफोर मेकिंग योर CV. ठीक है, जनरली ये होता है कि कई स्टूडेंट CV बनाते हैं और वो एक ही CV हर जगह पर चलाते हैं. CV बेसिक सेम हो सकता है मगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं हर जॉब के अप्लाई करने के. Suppose for an example, if you are applying for a job as a sales representative, ठीक है, या मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के लिए जब आप अप्लाई करने जा रहे हो तो उस वक्त जो है CV में आपकी कुछ चीजें बदल जाएगी, और अगर आप प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो उस समय में चीजें बदल जाएगी. आप अगर ग्राफिक डिजाइनर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका CV किसी अलग टाइप का बनेगा. आप अगर जो है तो एडमिन डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका CV अलग टाइप से बनेगा. उसमें कुछ बेसिक चीजें होती है उन रेज्यूम्स में which we are going to understand. So before going ahead, I would like just to share this particular thing with you कि जनरली एक वक्त में जो HR मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, उनके पास में हर मंथ थाउजेंड्स ऑफ CV आते हैं और एक पर्टिकुलर जॉब के लिए 200 से भी ऊपर CV उनके पास में रिसीव होते हैं. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर कि इन 200-300 CV में से वो हार्डली 10 या 15 CV शॉर्टलिस्ट करते हैं जिनको वो एग्जैक्ट टाइम ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और उस जो 10-15 लोग हैं उसमें से एक या दो पोजीशन जो भी उनको फिलअप करनी होती है वो फिलअप करते हैं. डिपेंड, अगर उनको 2 पोजीशन फिलअप करनी है तो वो 20 लोगों को बुलाएंगे, अगर उनको एक पोजीशन फिलअप करनी है तो 10 लोगों को बुलाएंगे. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कंपटीशन कितना हाई होता है. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिज्यूम फॉर्मेट. एक फॉर्मेट होता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम. इसका मतलब होता है कि लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस से लास्ट और मतलब फर्स्ट वर्क एक्सपीरियंस तक, मतलब जो करंट आपका वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ ये सबसे पहले आएगा, और जो सबसे पहले आपने जॉब की थी वो सबसे लास्ट में आएगा. बट आई गेस हियर मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रेशर्स, या वो थोड़ा बहुत जगह जॉब करके आए होंगे, तो उनके लिए जो सबसे सही रेज्यूम टाइप होता है वो होता है फंक्शनल और फ्रेशर रेज्यूम, जिसमें जो है तो ज्यादातर स्किल्स और अचीवमेंट के ऊपर में फोकस किया जाता है. और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में दोनों सेट को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है. नाउ बिल्डिंग रेज्यूम. बिल्डिंग रेज्यूम के लिए सबसे पहली चीज आप दिमाग में याद रख लेंगे, नंबर 1 थिंग इज डू नॉट कॉपी पेस्ट. जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे आर फ्रेशर्स, तो वो कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि दे टेक समवन एल्सेस रेज्यूम, उसके ऊपर में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह चेंज करते हैं और रेज्यूम सेम का सेम आगे बढ़ा देते हैं. अब उसमें जो चीजें चेंज करने वाली होती है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है और क्यों चेंज करनी चाहिए. क्वालिफिकेशन, बट ऑब्वियस यू आर गोइंग टू चेंज अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो तो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि लोग चेंज नहीं करते और वो गलत साबित होती है. उसके अलावा दूसरे का जो है नेवर रिफर टू दी पर्सनल एडवांटेजेस. आपको कभी भी ये एडवांटेजेस नहीं बताना चाहिए कि पर्सनल एडवांटेजेस आपको जॉब से क्या मिलने वाला है आपके रेज्यूम में, बल्कि ये बताइए आप कि आप कंपनी को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं. सो दीज आर दी थिंग्स. देन आपको टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक,
स्पेलिंग मिस्टेक्स, इन सब चीजों को चेक करते रहना चाहिए बिफोर मेकिंग द resume. Now there are 6 to 7 basic sections of a resume, और ये जो sections होते हैं ये हम देखेंगे one by one. Number 1 section is the header और identification section, इसको heading भी कहते हैं, लेकिन इस section में आप जो है तो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखोगे, बोल्ड में आप नाम लिखोगे, आप कैपिटल में भी नाम लिख सकते हो अपना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा नाम। उसके बाद में जो दूसरी चीज आती है फर्स्ट सेक्शन में, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी एंड योर एड्रेस। ये 3 चीजें फर्स्ट सेक्शन में डाली जाती है, और सेक्शन को नंबर नहीं देना है। जब रेज्यूम आप ओरिजिनल बनाओगे तब किसी भी सेक्शन को नंबर 1 सेक्शन, नंबर 2 सेक्शन ऐसे नहीं देना है, सिर्फ आपको डायरेक्ट लिखना है। जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ है राहिल खान, उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मतलब आपका जो परमानेंट, आपका जो करंट एड्रेस है वो देना है आपको। मतलब जो सपोज आप रहने वाले नासिक के हो, मगर आप मुंबई की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, और आपके मुंबई में कोई लोकल एड्रेस है, कोई रिलेटिव का एड्रेस है, कोई फ्रेंड का एड्रेस है, तो वो एड्रेस दीजिए, बिकॉज इस एड्रेस से आपको जो है तो जॉब मिलने में काफी आसानी मिलती है। उसके बाद में यू हैव टू पेस्ट अ वेरी गुड फोटोग्राफ एंड अ प्रोफेशनल फोटोग्राफ ऑफ योर्स। अपना प्रोफेशनल फोटोग्राफ लगाना बहुत जरूरी है। फोटोग्राफ बहुत टाइप के होते हैं, बट प्रोफेशनल फोटोग्राफ लगाना ये जरूरी होता है, क्योंकि जनरली आजकल स्टूडेंट्स या बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत सारे अजीब अलग अलग तरह के फोटोज रखते हैं अपने व्हाट्सएप डीपी पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर। सो यू शुड नॉट टेक दोज फोटोज। आपको जो है तो एक प्रोफेशनल फोटो खिंचवा लेना चाहिए, चाहे आप स्टूडियो में खिंचाओ या अपने मोबाइल से खींचो। अगर बॉयज है तो टाई ब्लेजर वगैरह पहन के एक प्रोफेशनल फोटो खींचो। गर्ल्स है अगर वो हिजाब बांध रही है, हिजाब बांध के मिनिमम ज्वेलरी पे इस तरह से जो है तो फोटो खींचनी चाहिए। देन नंबर सेकंड सेक्शन कम्स व्हिच हैव योर प्रोफेशनल समरी, और जिसको हम ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होता क्या है? जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ये बताता है कि आप ये जो जॉब करने वाले हो, तो ये जॉब करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, अब यहीं पर होता है कि बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं कि वो लोग ये बताते हैं जैसे कि मैं ये जॉब करना चाहता हूं टू डेवलप माय ओन सेल्फ। यहाँ पे आपको वो चीज नहीं बतानी है, आपको ये बताना है कि हाउ यू विल बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग और ग्रोइंग द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप एक जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हो, आप उसके डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प कर सकते हो। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बनता है, जिसमें आप जो है तो सिंपल एंड सोबर वर्ड्स में लिखना चाहिए। 2 से 3 लाइन का ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होता है, पैराग्राफ नहीं बनाना चाहिए उसको। 1, 2, 3 लाइन का ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होता है। नेवर एवर गिव योर वर्किंग प्रेफरेंसेस। जैसे कि बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि टीम ओरिएंटेड। अभी सीकिंग एंड टीम ओरिएंटेड एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि आप एम्प्लॉयर को ये बोल रहे हो कि आप टीम में ही काम कर पाओगे, मगर ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोन वुल्फ भी काम कर सकते हो, आप टीम में भी काम कर सकते हो। तो उनको ये मत बताओ आप जॉब सीकर्स को, आप आप एम्प्लॉयर्स को, कि आप किस तरह से काम करना चाहते हो। आप उनको ये फोकस करके बताइए ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में कि आप किस तरह से बेनिफिट कर सकते हो कंपनी को अपनी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के द्वारा। तो ये होता है सेकंड सेक्शन। और वो सेकंड सेक्शन में भी आप सेक्शन नहीं लिखोगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखोगे। उसके बाद में जो है तो आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। वो खत्म होने के बाद में यू कैन लीव सम स्पेस, और इवन आप जो है तो एक बॉर्डर लगा सकते हो, एक लाइन लगा सकते हो बीच में। एंड देन कम्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजी में होती है। रिवर्स क्रोनोलॉजी अगेन कि आपका जो अभी जो आपने रिसेंटली फिनिश किया है, कैन आई हैव द आंसर्स कि कौन कौन से बच्चों ने क्या क्या अभी तक क्वालिफिकेशंस फिनिश की है इन द चैट बॉक्स। आपका अभी ग्रेजुएशन क्या क्या हुआ है, कौन कौन से फील्ड के स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे कैंडिडेट मौजूद हैं। फैसल भाई, बीटेक मैकेनिकल, बी सिविल, बीएससी, बीटेक मैकेनिकल, ग्रेजुएशन बीएफ, diploma, okay, MSc, CA, mixed candidates yes, we sir. have currently over here. Very good, very good. So we have a mixed bunch of candidates over here. Fine. तो आपको जो शुरुआत करोगे, सपोज जैसे कि कोई बीई है तो वो बीई लिखेगा, कोई अगर जिसने बीए किया है वो बीए लिखेगा,
किसी ने बीएससी किया है वो बीएससी लिखेगा, किसी ने बी फॉर्म किया है वो बी फॉर्म लिखेगा, किसी ने जो है तो बीटेक किया है बीटेक लिखेगा, किसी ने अगर पॉलिटेक्निक किया है तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग लिखेगा। इस तरह से आप सबसे पहले वो वाला क्वालिफिकेशन लिखोगे, स्टार्ट ईयर और एंड ईयर लिखोगे। जैसे सपोज अभी किसी का अगर बी खत्म हुआ है 2021 में, मतलब बट ऑब्वियसली उन्होंने स्टार्ट किया होगा 2017 में, 2017 में स्टार्ट किया होगा, 18 19 20 और 21 में जो है तो उनका बी खत्म हो गया, तो वो स्टार्ट ईयर और एंड ईयर लिखेंगे आप। उसके बाद में अपना जो भी आपने स्पेशलाइज जो भी आपका ग्रेजुएशन हुआ है उसका डिग्री का नाम लिखेंगे, नीचे में इंस्टीट्यूट का नाम और साथ में जो है तो यूनिवर्सिटी लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो कॉलम आएगा उसमें आप सीजीपीए या आपका जो भी परसेंटेज है वो लिखिए। इस तरह से ये हुआ आपका अभी ग्रेजुएशन तक। ग्रेजुएशन के बाद में यू आर गोइंग टू राइट योर एचएससी, उसके बाद में आपको लिखना है एचएससी। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट पहले लिखेंगे, फिर ग्रेजुएशन लिखेंगे, फिर एचएससी लिखेंगे और उसके बाद में एसएससी लिखेंगे 10th। बस 10th तक का ही क्वालिफिकेशन हर रेज्यूम में जाता है, चाहे आप रेज्यूम बनाओ या सीवी बनाओ, इसके नीचे की क्वालिफिकेशन देने की ना जरूरत होती है और ना ही दी जाती है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसको एक टेबुलेशन फॉर्म में आपको बनाना चाहिए। देन कम्स सेक्शन 4 जिसमें आप समर इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हो। कुछ लोगों के पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है, अगर 6 महीने का भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हो, साल भर का भी है तो आप बता सकते हो। अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो बट स्टिल यू मे हैव इंटर्नशिप, अगर कुछ लोगों ने इंटर्नशिप की है तो बहुत अच्छा है। एंड आई ऑलवेज टेल ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल माई मेंटीज, मैं जहां भी बच्चों का चाहे मैं किसी भी तरह की ट्रेनिंग देता हूं उनको, तो आई ऑलवेज टेल देम टू ग्रैब सम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। इंटर्नशिप करना आज के दौर में बहुत फायदेमंद है और हर एक को करना चाहिए, चाहे वो इंटर्नशिप कैसी भी हो। आजकल तो ऑनलाइन इंटर्नशिप मौजूद है, पिछले 1.5 साल से मिल रही है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन। अभी भी आप लोग सर्च कर सकते हैं और ऑनलाइन इंटर्नशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो बहुत बढ़िया काम होता है, क्योंकि इसमें जब आप इंटर्नशिप डालते हो तो आपके एम्प्लॉयर को एक ये चीज पता चल जाती है कि आपने कोई काम किया है, प्रोफेशनल वर्क किया है, एंड थ्रू दैट प्रोफेशनल वर्क यू विल बी इजीली अडेप्टेबल टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर। तो ये जो उनके लिए एक बहुत बड़ी आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट हो सकता है, तो आपका ये इंटर्नशिप डालना है। देन नंबर 5 पर आता है अकम्पलिशमेंट एंड अचीवमेंट आता है। अकम्पलिशमेंट अचीवमेंट्स पर हो सकता है कि आपके कुछ जो आपने अवार्ड्स अगर कुछ लिए हो, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी टॉपर होगा, कोई कॉलेज टॉपर होगा, आप उसको यहाँ पे उसको हाईलाइट कर सकते हो। स्पोर्ट्स में आपकी टीम जीती होगी, आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। आपने कोई चैंपियनशिप जीती होगी, कोई चेस चैंपियन होगा, कोई कैरम चैंपियन होगा, वो यहाँ पर आप जो है तो उसको हाईलाइट कर सकते हो। आपने कोई पोस्टर प्रेजेंटेशन किया होगा, कोई पेपर प्रेजेंटेशन किया होगा, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। यू कैन इवन हाईलाइट आपने कोई जो है तो सेमिनार दिया होगा, उसका कोई सर्टिफिकेट होगा आपके पास, वो आप हाईलाइट इस यहाँ पे जो है तो लगा सकते हो। और उसके अलावा आपकी कुछ स्किल्स होगी जिसके द्वारा आपने कोई काम ऐसा किया होगा जिससे जो है तो आपके काम में मतलब कोई हेल्प मिली होगी, वो सारी चीजें आप अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट में आप लिख सकते हैं। देन नंबर 6 सेक्शन कम्स स्किल्स एंड स्ट्रेंथ। नाउ स्किल्स एंड स्ट्रेंथ का मतलब होता है यहाँ पर आपको अपनी स्किल सेट बतानी है, क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन है, चाहे बी हो, बीटेक हो, आपका बीएससी हो, बीए हो, बी फॉर्म, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आपने जो अचीवमेंट हासिल किए हैं, अवार्ड, मेडल्स, ये सब उसमें हासिल किए हैं। स्किल्स होती है या तो हम उसको वक्त के साथ साथ सीखते हैं, ओके, या वक्त हमको वो चीज सिखा देता है। ओके, अब ये थोड़ा डिबेट का मुद्दा है, हम उसके ऊपर अभी बात नहीं कर सकते, बट दिस इज समथिंग कि स्किल्स हम हासिल करते हैं थ्रू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे आपने कोई और स्किल सेट हासिल किया हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आजकल अपना कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं उसके साथ में वो कंप्यूटर्स का कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्स करते हैं, इसको यहाँ पर आप लिखिए। उसके अलावा कुछ लैंग्वेजेस में लोग कोर्स करते हैं, जैसे कुछ लोग जो है तो इंग्लिश लैंग्वेज का कोई कोर्स करते हैं, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ लोग फ्रेंच लैंग्वेज वगैरह सीखने का काम करते हैं, वो लगा सकते हैं। बहुत सारे जो है तो मुस्लिम बच्चे होते हैं, वो लोग अरेबिक लैंग्वेज का जो है तो डिप्लोमा वगैरह करते हैं आजकल, अरेबिक बोलचाल। तो जो गल्फ की जो वैकेंसीज होती है उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आपको एक चीज मिल जाती है, आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर कोई और जो है तो मतलब इस टाइप के आपके अंदर
स्ट्रेंथ या स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल है आपके अंदर में, वो आप लिख सकते हैं कि हैविंग वेरी गुड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं जो हम मुंह जबानी बात करते हैं, नॉन वर्बल वर्बल में आता है, जैसे रिटन कम्युनिकेशन स्किल भी आता है, उसमें बॉडी लैंग्वेज भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये सब चीजों को हम बता सकते हैं इनटू skills and strength वाले section में। So here is sixth section. Now comes the seventh section, which is the last one as well. इस लास्ट सेक्शन में आप पर्सनल डिटेल्स लिखते हैं अपनी, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका लैंडलाइन नंबर है, अल्टरनेट नंबर अगर कोई है तो वो आप दे सकते हैं इसमें, नेशनलिटी मेंशन करिए, परमानेंट एड्रेस जैसे मैंने बताया कि आपका परमानेंट एड्रेस वो होगा कि जो आपके जनरली आधार कार्ड पे मौजूद होता है, ओके, जो आपके पासपोर्ट में मौजूद होता है, जो आपका ओरिजिनल एड्रेस है। और करंट एड्रेस आपका ये होगा कि जैसे आप नासिक के रहने वाले हो या नागपुर के रहने वाले हो, जॉब करने आप मुंबई में जा रहे हो, मुंबई में किसी रिलेटिव का एड्रेस दे सकते हो आप, फ्रेंड का एड्रेस दे सकते हो आप, तो ये आपका करंट एड्रेस होता है, ये आपको देना चाहिए। मैरिटल स्टेटस वगैरह जनरली रिज्यूम में मेंशन नहीं किया जाता है, वो सीवी में मेंशन होता है। रेफरेंसेस दे सकते हैं हम लास्ट में। रेफरेंसेस आर समथिंग कि आप अपने जो आप प्रिंसिपल का रेफरेंस दे सकते हैं, अपने कॉलेज के डीन का रेफरेंस दे सकते हैं, एचओडी का रेफरेंस दे सकते हैं, किसी प्रोफेसर का रेफरेंस दे सकते हैं, प्रोफेशनली आपने कोई इंटर्नशिप की है, वहां का जो आपका सुपरवाइजर थे या जो आपके मैनेजर थे उनका रेफरेंस दे सकते हैं आप, या जो है तो आपकी सोसाइटी में कोई नामवर आदमी हो जिनको लोग पहचानते हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई बड़े शख्स हो जिनकी इज्जत हो सोसाइटी में, उनका रेफरेंस दे सकते हैं। बट मेक श्योर कि वो आदमी भी आपको जानता हो, ओके, और वो आदमी आपके बारे में सही और अच्छी बातें बोले अगर उनको फोन जाए एचआर मैनेजर से तो, ओके। सो दिस इज अबाउट योर रेज्यूम। यहाँ पे आप रेफरेंसेस दे सकते हो, और लास्ट में जो है तो डिक्लेरेशन देते हैं हम। डिक्लेरेशन में ये लिखना पड़ता है आपको कि ऑल द अबव गिवन आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द अबव गिवन इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, और नीचे आप अपना सिग्नेचर करते हो और प्लेस और डेट लिखते हो। ये हर रेज्यूम में लास्ट में लिखा जाता है। देन देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड रेज्यूम में। मैंने अभी आपको फॉर्मेट तो बता ही दिया। देन आफ्टर दिस इज द थिंग कि आपका पेपर कौन सा होना चाहिए। A4 साइज पेपर यूज करते हैं, व्हाइट पेपर यूज करते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर यूज करते हैं, ओके। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि एग्जीक्यूटिव बॉन्ड एक पेपर आता है, ATGSM का होता है, ये यूज करना चाहिए। A4 साइज का पेपर आता है, पेपर के साइज होते हैं, A3 भी आता है, A4 भी आता है, लेटर हेड एक पेपर का साइज होता है, अलग अलग आते हैं पेपर के साइज। तो A4 पेपर का साइज यूज किया जाता है, व्हाइट पेपर होना चाहिए, और जो टाइप आप जो करोगे वो फॉन्ट ब्लैक होंगे। कलरफुल रेज्यूम कभी नहीं बनाना है हमको, बिकॉज कलरफुल रेज्यूम बनाने से प्रॉब्लम ये होता है कि बड़ा ही भद्दा दिखता है वो। कलरफुल रेज्यूम कुछ जगह चलते हैं मगर वो इंडस्ट्रीज दूसरी होती है, जैसे कि जो आर्ट्स मतलब के एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, या ग्लैमरस इंडस्ट्री है, मॉडलिंग है, टेलीविजन फिल्म इंडस्ट्री, उस टाइप की इंडस्ट्री में ये कलरफुल रेज्यूम्स चलते हैं। बाकी जनरली रेज्यूम ब्लैक एंड व्हाइट ही होना चाहिए। लीव 1 इंच मार्जिन ऑल द साइड, हर चारों साइड से आपको 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। फॉन्ट साइज जो नेम आप लिखोगे स्टार्ट में, सबसे पहले आपका जो नेम लिखोगे ये साइज आपका बोल्ड में होना चाहिए, और 16 का फॉन्ट साइज आप रखेंगे। और स्टैंडर्ड फॉन्ट यूज करिए, एरियल या कैलिब्री, या बहुत करके आप टाइम्स न्यू रोमन यूज कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो आड़ा टेढ़ा फॉन्ट होता है वो कभी यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो सेक्शन हेडिंग होती है, जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्टिव समरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बाकी सब चीजें, ये 14 के फॉन्ट साइज में आएगा आपका। और बाकी जो भी बैलेंस टेक्स्ट जो भी होगा, जैसे आप ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो लिखोगे या बाकी की जो चीजें लिखोगे, वो फॉन्ट साइज 12 का होगा। और इसको अगर आपको फोल्ड करना है, अगर आप पोस्ट से भेज रहे हो तो इसको 6x9 के एनवलप में एक सिंगल फोल्ड करके भेजना है। वैसे ज्यादातर जो रेज्यूम है आजकल वो थ्रू ईमेल ही जाते हैं, या जो है तो वेबसाइट के जरिए ही जाते हैं। सो दिस इज द थिंग। उसके बाद में दिस इज द रिवीजन फॉर यू। रेज्यूम लेआउट इस तरह से होता है। यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज थिंग्स। एक कवरिंग लेटर जो है तो रेज्यूम के साथ बनाया जाता है जनरली। वो इसलिए होता है कि जो आप रेज्यूम जिस शख्स को आप भेज रहे हो, जैसे कि टू द एचआर मैनेजर, उनका नाम अगर पता है, टू मिस्टर XYZ द एचआर मैनेजर ऑफ सो एंड सो कंपनी, वो करके सो एंड सो प्लेस, ये लिख के आप जो है तो नीचे लिखोगे सर, रिस्पेक्टेड सर,
और उसमें आप ये मेंशन करोगे कि आपको ये वैकेंसी का किस तरह से पता चला, आप इस वैकेंसी के लिए क्यों एलिजिबल हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आपका एक्सपीरियंस है नहीं है, और उसके साथ में कि आपने इसके साथ में CV लगाया है। ये होता है कवरिंग लेटर। सो माय बेस्ट रेज्यूम टिप्स आर देयर कि अवॉइड वैग्यू टर्म्स लाइक डिटेल ओरिएंटेड और हार्ड वर्कर। ऐसे वर्ड को कभी लिखना नहीं चाहिए रेज्यूम में, नंबर 1। नंबर 2, साइट इंस्टेंसेस योर स्किल्स बेनिफिटेड योर टीम और एम्प्लॉयर। अगर आपकी टीम ने या कहीं आपके एम्प्लॉयर को आपके वजह से जो भी आपकी स्किल्स है या आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके वजह से बेनिफिट पहुंचा है, उसको रेज्यूम में डालिए। आप वो कहाँ डाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, वहां लिख सकते हैं आप कुछ चीजें। आप जो है तो अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट में ये चीजें बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोमिनेंटली लिखिए आप इसको बराबर से। देन यूज बुलेट पॉइंट्स फॉर बेटर रीडेबिलिटी एंड यूज क्लीन जॉब अप्रोप्रिएट टेम्पलेट। दीज थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड। थ्रू दिस वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से मतलब अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। इंटरव्यू जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉब इंटरव्यू है, इट इज अ process in which a potential employee is evaluated by an employer for prospective employment in their company। मतलब आप एक इंटरव्यू के लिए जब जाते हो तो इंटरव्यू आपको एक्चुअली जज करने का एक जरिया है। जो एम्प्लॉयर होते हैं या जो HR मैनेजर होते हैं, वो आपको ये टेस्ट करने के लिए इंटरव्यू लेते हैं कि क्या आप उस जॉब के लायक हो या नहीं हो। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। एंड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू देयर आर सम टिप्स व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू। और जो हम सॉफ्ट स्किल्स की बातें कर रहे थे, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, हम वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही आज हम उसको कवर करेंगे। फाइन, कि आपको इंटरव्यू में कामयाब होने के लिए आपको क्या करना जरूरी है। नंबर 1 थिंग जो हमने पहले रेज्यूम बनाना सीखा या रेज्यूम बनाना देखा, रिमेंबर इट, रेज्यूम आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब के इंटरव्यू तक पहुंचाएगा। ओके, रेज्यूम आपको जॉब नहीं दिलाएगा, बल्कि रेज्यूम आपको जॉब इंटरव्यू तक पहुंचाएगा। अब इंटरव्यू में किस तरह से आपको क्रैक करना है, हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। नंबर 1 थिंग इज रिसर्च द कंपनी। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उससे पहले आपको पता है आपने कौन सी जॉब के लिए अप्लाई किया है, कौन सी कंपनी में अप्लाई किया है, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए। ओके, उसके बारे में रिसर्च करिए और पता करिए कि किस तरह से मतलब जो कंपनी है वो कहाँ से आज को किस लेवल पर पहुंची है। सपोज यू आर गोइंग फॉर टाटा। टाटा में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है। अब TCS में अगर आप जॉब के लिए जाते हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, तो ये पता करिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कब शुरू हुई, उनकी क्या क्या सर्विसेज हैं। ओके, कोई कंपनी है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। देखिए, कोई कंपनी अगर है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके दो चीजें होगी, या तो दोनों में से एक चीज होगी या उनके पास दोनों चीजें होगी। या तो उनके पास सर्विसेज होगी या तो उनके पास प्रोडक्ट होगा, या तो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों होगा। ओके, तो आप ये पता करिए कि उनके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, सर्विसेज कौन कौन सी है, कौन सी उनकी सर्विसेज जो है तो मेन उनका हाईलाइट है, या कौन सा प्रोडक्ट है उनका जो हाईलाइट है। ओके, और कंपनी का मार्केट प्रेजेंस क्या है, कंपनी कितने सालों में कितना अचीवमेंट किया है, ये सारी चीजें आपको पता करना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड एज रिसर्चिंग द कंपनी। ओके, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपके जॉब प्रोफाइल में कुछ अगर वर्ड उसमें दिए हैं आपको नहीं समझ में आते हैं, किसी व्यक्ति से पूछिए या इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करिए, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। फाइन। नंबर 2 कम्स प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू इज रिहर्सिंग फॉर योर इंटरव्यू। आपको रिहर्स करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि आप जब तक खुद का रेज्यूम एक तो पढ़ना है, आपको जॉब के बारे में पढ़ना है, आपको कंपनी के बारे में जो है तो रिसर्च करना है, और आपको रिहर्स करना है। रिहर्स करना है इन द सेंस, अब कई लोग बोलते हैं जैसे सर वी आर वेरी दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना, मैं ये नहीं कहता हूं कि कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट इंग्लिश, नो, इट इजंट लाइक दैट, but we should, or we all should know a kind English, because the job requires English language in terms of written as well as in verbal communication. So writing में भी और verbal communication में भी इंग्लिश का जरूरत पड़ता है, और क्योंकि आप ग्रेजुएट्स हो तो वहां तक आपको उतनी इंग्लिश आनी चाहिए। अब उसको आपको अडॉप्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रिहर्स कर सकते हैं। जैसे कि जो सबसे टिपिकल और पहला क्वेश्चन जो होता है हर एम्प्लॉयर का, दैट इज
टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब आपको अपने ही बारे में बताना है। आप वो 4 लाइन जो है तो आप अच्छे से इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली रिहर्स कर सकते हो। रिहर्स कहाँ करना है आपको, कहाँ प्रैक्टिस करनी है? सबसे पहले तो आईने के सामने कर लीजिए, या अपना आजकल सभी के पास में स्मार्टफोन है, उसका फ्रंट कैमरा ऑन करके करिए, उसमें जो है तो वीडियो बना लीजिए, फिर आप देखिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अपना कोई फ्रेंड है, कोई बड़े भाई है, कोई सिस्टर है, उनके साथ बैठ के करिए, ग्रुप में रिहर्स करिए, तो इससे जो है तो आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका रिहर्स कीजिए। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, इसके बारे में रिहर्स करिए। व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद आवर कंपनी, ये क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू में। इसका आंसर ये होता है कि आप वहां से पता करोगे कि कंपनी में कितने साल में क्या क्या स्टैब्लिश किया। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, सर दिस कंपनी स्टार्टेड इन द ईयर सो एंड सो, हिज फाउंडर इज सो एंड सो, इन दिस ईयर कंपनी हैज अचीव दिस मच, आज इसका मार्केट शेयर इतना है, आज इसके शेयर प्राइसेस इतने हैं, आज इसके पास में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, आज इसका ये प्रोडक्ट जो है तो स्टार प्रोडक्ट है। ओके, ये सारी चीजें अगर आप बताते हो तो एम्प्लॉयर इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रेस बाय योरसेल्फ। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसकी आपको रिहर्स करना बहुत जरूरी है। रिसर्चिंग कंपनी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कंपनी के बारे में आप रिसर्च करिए, उसके कैटलॉग होते हैं, गूगल पर आजकल हर एक कंपनी के बारे में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, वो कब स्टैब्लिश हुई थी, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उनके सीईओ कौन है। ओके, ऑल दोस थिंग्स तो आप उसको समझ में आ जाएगा। So this is about preparation for interview in terms of researching the company and rehearsing yourself. The second next thing comes is the dressing. इसको हम कहते हैं पावर ड्रेसिंग। पावर ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, देखो बेसिक चीजें तो कुछ ये है कि ग्रूमिंग, ग्रूमिंग यानी अपने आप को सजाना संवारना। जैसे होता है ना कि आप कोई फेस्टिवल में तैयार होते हो, ईद के लिए तैयार होते हो, कोई घर में किसी करीबी की शादी है, भाई बहन की या किसी करीबी रिश्तेदार की, तो हम तैयार होके जाते हैं। सो इंटरव्यू भी एक ऐसा ओकेजन है आपके लिए कि आपको अच्छे से तैयार होकर जाना है, मगर शादी में जिस तरह से तैयार होके जाते हैं वैसे तैयार नहीं होना है। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस थिंग, व्हाट डू आई वेयर, कि ये जो है कंफ्यूजन है कि व्हाट शुड आई वेयर, बट यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आपको बहुत ज्यादा फैंसी क्लोथिंग नहीं करनी है, बहुत ज्यादा फैशनेबल क्लोथिंग नहीं करनी है। ट्रेंडी क्लोथिंग इन द सेंस आपको जो है तो इस तरह की क्लोथिंग रखना है आपका कि जो डिसेंट, ओके, फॉर्मल हो और डिसेंट, क्लियर। देन आपकी ग्रूमिंग बराबर होनी चाहिए, आपके नेल्स कट होने चाहिए, आपके बाल जो है तो कट होने चाहिए। अगर आप शेव करते हो तो यू शुड क्लीन शेव योर बियर्ड। अगर आप ट्रिम करते हो तो आपकी बियर्ड ट्रिम होनी चाहिए। ओके, दीज थिंग्स आर देयर। देन ड्रेसिंग्स बॉयज के लिए जो होती है, जो क्लासिक कॉम्बिनेशन होता है, विच आई ऑलवेज रिकमेंड टू एवरी कैंडिडेट, के ब्लैक ट्राउजर एंड व्हाइट शर्ट, ये सबसे क्लासिक कॉम्बिनेशन है। व्हाइट शर्ट ब्लैक ट्राउजर बहुत कॉमन सा लगता है और बहुत ही ट्रेडिशनल सा लगता है, तो आप शर्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि स्काई ब्लू शर्ट आप पहन सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो है तो आप लाइट जो है तो मतलब कोई जैसे पिस्ता कलर होता है या लाइट क्रीम कलर होता है, उस तरह कलर का शर्ट आप पहन सकते हो। ओके, बट इसी कॉम्बिनेशन में चलना चाहिए, एंड यू शुड ऑलवेज वेयर प्लेन शर्ट, नो स्ट्रिप्स, नो चेक्स। स्ट्रिप्स चल जाते हैं, चेक्स आर ऑलवेज नो नो, चेक्स कभी भी नहीं पहनना चाहिए इन इंटरव्यूज। स्ट्रिप्स पहने जा सकते हैं, मगर स्ट्रिप के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो कई लोगों को पता नहीं होते हैं कि कौन से स्ट्रिप्स पहनना चाहिए, इसलिए ऑलवेज अवॉइड दीज थिंग्स। प्लेन ट्राउजर एंड प्लेन फॉर्मल ट्राउजर एंड प्लेन जो है तो शर्ट पहनने चाहिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स कि इस बात को थोड़ा ध्यान रखें अभी आजकल के दौर में, बिकॉज आजकल हमने देखा है कि जो फॉर्मल पैंट भी आप जिसको कहते हो, जिसको आप ट्राउजर कहते हो फॉर्मल ट्राउजर, वो भी बड़ी फिटिंग वाली होती है। लाइक्रा वगैरह में जो है तो ट्राउजर आती है स्ट्रेचेबल कपड़े में, पेंसिल कट में होती है, जो कि पूरी फिट होती है। जिस तरह से पहले एक स्किन टाइट जीन्स आती थी, उसी तरह से आजकल वो ट्राउजर भी फिट होती है। ऐसे ट्राउजर ना पहने आप, एंकल लेंथ वगैरह बोलते हैं जिनको। फॉर्मल ट्राउजर्स पहने आप, जिस तरह की यहाँ पे मैंने फोटो बताया है, इस तरह का ट्राउजर पहने। शूज आप ब्लैक पहने, ओके, और ब्लैक फॉर्मल शूज पहने। ओके, ब्लैक फॉर्मल शूज, बहुत ज्यादा जो है तो वो लोफर जो आजकल आते हैं
जिसमें लोगोज वगैरह बने होते हैं उस टाइप के ना पहने। लेस वाले पहनते हैं तो बहुत अच्छा है, विदाउट लेस वाले भी पहन सकते हैं जो कि फुल आपका जो है तो सॉक्स ढाक ले, इस टाइप के शूज पहने। बेल्ट, ब्लैक शूज पहन रहे हैं, ब्लैक बेल्ट पहने आप। टाई कॉन्ट्रास्ट होनी चाहिए आपके शर्ट से, शर्ट जो है तो लाइट कलर का होता है तो टाई जो है तो डार्क कलर की होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत आपके पैंट से मैचिंग होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज दी ग्रूमिंग टेक्निक फॉर बॉयज। ऊपर का आपका पॉकेट जो होता है, फ्रंट पॉकेट, ये याद रखिए इसको कि वहां पे बहुत सारी चीजें नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो लोग पॉकेट में बहुत सारे पेपर या पैसे वगैरह ऊपर रख लेते हैं। वो सब चीजें ना रखें, आप एक पेन रखें। पेन जो है तो एकदम सिंपल सा भी ना हो, जैसे सेलो ग्रिपर वगैरह ये हो, ऐसा पेन ना रखें आप। कोई बटन वाला पेन, जेटर वगैरह होता है, उस टाइप का पेन रखें ऊपर वाले पॉकेट में। ओके, बाल आपके जो है तो बराबर जमे हुए हो, और परफ्यूम बहुत ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। घड़ी जो है तो चेन वाली घड़ी अवॉइड करना चाहिए, जो चेन वाली घड़ियां होती है। बेल्ट वाली जो घड़ी होती है, लेदर स्ट्रैप वाली, वो वाली हमेशा पहननी चाहिए। तो these are the things. Grooming tips for girls. This is actually a western kind of clothing, क्योंकि मैं दूसरी जगह भी ये ट्रेनिंग्स देता हूँ, बट हमारे यहाँ पर अगर मुस्लिम बच्चियां भी हैं, वो जाती है इंटरव्यू के लिए, तो उनके लिए भी कुछ ग्रूमिंग टिप्स मैं देना चाहता हूँ। कि सबसे पहले तो ज्यादा कलरफुल कपड़े ना पहने, बिकॉज हमारे यहाँ होता है कि काफी कलरफुल कपड़े पहने जाते हैं कई मुस्लिम माशरे में, तो वैसे कपड़े ना पहने। आप अगर स्कार्फ बांधते हो, आप अगर पर्दा करते हो, हिजाब करते हो, अगर ब्लैक बुरखा पहनते हो तो ब्लैक बुरखा पहनिए, बहुत अच्छा है। ज्यादा कलरफुल बुरखे ना पहने आप, डिजाइनर बुरखे ना पहन के जाए इंटरव्यू में। उसके अलावा अगर बुरखा नहीं पहनते हैं तो जो ड्रेस है वो जो होता है ना, मतलब टिकली वाला या फिर वो जरी का वर्क वाला जो होता है, इस टाइप के ना पहने। प्लेन पहने, प्रिंटेड चल जाएगा, मगर सोबर लाइट कलर पहने, जैसे कि ऑफ वाइट है, क्रीम है, स्काई ब्लू है ना, इस टाइप के कलर्स पहने तो वो ज्यादा बेटर होता है। फाइन। ज्वेलरी बहुत ज्यादा नहीं पहननी चाहिए गर्ल्स में, सिंपल ज्वेलरी रहनी चाहिए। और जो है तो मतलब जो फुट में फुटवेयर जो हम जिसकी बात करते हैं, आप सैंडल पहन सकते हैं, बट फ्लैट सैंडल पहनिए, जिस तरह की बाटा वगैरह की आती है। जो हिल्स होती है या बहुत ज्यादा जो टक टक आवाज करने वाली सैंडल्स होती है, ये ना पहने। और ब्लैक ही सैंडल पहने या ब्राउन पहने, वो ज्यादा बेटर होता है फीमेल्स के लिए भी। ज्यादा कलरफुल शूज पहनना नहीं चाहिए। सो इस तरह से आपको रखना चाहिए ग्रूमिंग। और उसके अलावा बॉयज हो या गर्ल्स हो, ज्यादा अपने साथ में सामान ना कैरी करें। एक बैग आप रख सकते हो जिसके अंदर में आपका फाइल हो, या आप फाइल फोल्डर लेके चल सकते हो। साथ में जो है तो कोई बुक रख सकते हो आप। ओके, कोई मैगजीन, फिल्मी मैगजीन नहीं होना चाहिए, कोई बिजनेस मैगजीन हो सकती है, या कोई आपका जर्नल हो सकता है, जो साइंटिफिक जर्नल है, अगर कोई लोग उस टाइप का इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो। या फिर जो है तो कोई एक बुक हो सकती है जिसमें से आपको कुछ पढ़ना है, या कोई नॉवेल हो सकता है, मगर कोई ज्यादा और ज्यादा चीजें आपके साथ में होनी नहीं चाहिए इंटरव्यू के टाइम। देन दिस इज दी टाइम मैनेजमेंट टिप्स। ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और सॉफ्ट स्किल्स में आती है। अपना जो टाइम है इसको हमको मैनेज करना चाहिए। दिस इज दी आइजनहावर मैट्रिक्स, ये मैंने नहीं बनाया है। आइजनहावर जो कि यूएस के प्रेसिडेंट भी थे, उससे पहले वो यूएस आर्मी के जनरल थे, चीफ थे, उन्होंने ये मैट्रिक्स बनाया था बहुत सालों पहले। इसमें कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो हमको मैनेज करने चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, मतलब ये हमको सबसे पहले करने चाहिए, और इसको मैनेज भी करना है, और इसको पहली प्रायोरिटी पे काम को खत्म करना है। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी। ये काम काम को हमको 4 चीजों में बांट लेना चाहिए। नेक्स्ट होता है सेगमेंट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। मतलब ये होता है कि काम इंपॉर्टेंट तो है मगर अभी अर्जेंट नहीं है। ओके, तो इस टाइप की चीजों को, इस टाइप के काम को हमको सेकंड पोजीशन पे रखना चाहिए। देन अवॉइड करने वाले कई सारे काम होते हैं, जैसे कि अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अर्जेंसी है कि मेल चेक करना है, मगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, मेल बाद में भी चेक कर सकते हैं। एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी कैन लिमिट, जो कि टाइम वेस्ट करती है, जैसे कि ना तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ना ही तो अर्जेंट होते हैं। जैसे कि फेसबुक की पोस्ट चेक करना, ओके, इंस्टाग्राम की रील चेक करना, ये जो है तो चीजें ना ही तो इंपॉर्टेंट है, ना ही तो अर्जेंट है। मगर हमारा प्रेफरेंस क्या होता है कि पहले वहां ज्यादा जाता है, तो हमको ये सब चीजों से बचना चाहिए। दिस इज टाइम मैनेजमेंट। And why I have
we are talking about time management. जैसे I have told you कि ये soft skill हम हर एक को इंसान को time management करते आना चाहिए. On time interview, okay? इंटरव्यू में जाने के लिए आपको पहले तो रास्ता पता कर लो कि आपका इंटरव्यू कहाँ है, कौन सी जगह होने वाला है, वहां से आपके डेस्टिनेशन से आपको जाने के लिए कितना वक्त लगता है, how much time will it take for you to reach to your destination, and try to figure out in terms of your timing that how you are going to reach there, by bus, by local, by train, by bike, by taxi, by auto, whatever. And always try to reach at least before 10 to 15 minutes. Okay, means if you have given the time slot 9:30, अगर आपको 9:30 को या 10 o'clock को बुलाया है तो आपने 9:30 या 9:45 तक पहुंच जाना चाहिए. अगर आपको 10:30 का टाइम दिया है इंटरव्यू के लिए तो आपने 9:15 तक आपके वहां पे ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए. बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं जाना चाहिए और लेट तो कभी भी नहीं जाना चाहिए. फाइन. So there are then types of interviews. There are different types of interviews. Behavioral interview होते हैं, stress interview होते हैं, telephonic round of interview होते हैं, technical round of interview होते हैं. Telephonic you must be understanding कि जो टेलीफोन पे किए जाते हैं. टेक्निकल राउंड में आपको कुछ काम करने लगाते हैं या कोई टास्क दिया जाता है and then you have to perform it. These are called as technical round. ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं, मींस एक साथ 5-6 कैंडिडेट को बुलाकर उनसे क्वेश्चन किया जाता है एंड देन दे सी कि कौन से कैंडिडेट का जो है तो डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट और बिहेवियर सही है, कौन सा कैंडिडेट सही आंसर सही टाइम पर देता है. देन पैनल इंटरव्यू होता है. पैनल इंटरव्यू इज समथिंग कि जिसमें एक पैनल बैठा होता है 5-6 लोगों का. ग्रुप इंटरव्यू और पैनल इंटरव्यू एक दूसरे का वाइस वर्सा है. जैसे ग्रुप इंटरव्यू में 5-6 लोग बैठे होंगे और एक इंटरव्यूअर या 2 इंटरव्यूअर जो है तो वो टास्क देंगे या वो सवाल पूछेंगे. पैनल इंटरव्यू में इसका उल्टा होता है, एक 4-5 लोगों का पैनल बैठा होता है और वो जो है तो एक ही कैंडिडेट से क्वेश्चनिंग करते हैं. देन रोल प्लेस होते हैं, आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटरव्यू इज पर्सनल इंटरव्यू. फाइन. सो दिस इज द थिंग कि पर्सनल इंटरव्यू जो है तो सबसे मेन टाइप ऑफ इंटरव्यू है. लाइक दिस इज ऑल्सो नोन एज द फेस टू फेस इंटरव्यू, जिसमें जो इंटरव्यूअर होता है या जो एचआर मैनेजर होता है, दे आस्क्ड द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. और वो फेस टू फेस इंटरव्यू ये हमेशा इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपका बिहेवियर और बाकी आपका जो है तो इंटरपर्सनल स्किल्स और बाकी सारी चीजें जो है वो 10 मिनट के अंदर ही जो है तो जो एचआर मैनेजर होते हैं या जो इंटरव्यूअर होता है वो 10 मिनट के अंदर में आपको समझ जाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्या आप ये जॉब करने के लायक हो या नहीं हो. सो दीज आर द थिंग्स ये पर्सनल इंटरव्यू में देखा जाता है. और पर्सनल इंटरव्यू में not only the verbal communication but also your body language is taken care of. आपकी body languages को भी देखा जाता है. And let me tell you, जो भी हम communication करते हैं, if you are communicating with someone, अगर हम बैठे बैठे, अभी ये तो वेबिनार शुरू है, अदरवाइज अब अगर हम एक दूसरे के सामने हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो जो वर्ड्स होते हैं हमारे, जो वर्ड्स होते हैं, जो हमारे लफ्ज होते हैं, अल्फाज होते हैं, ये सिर्फ 20 to 25% ही जो है तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट होता है. रिमेनिंग 75 to 80% जो होता है इट ऑल कम्स इनटू वेरियस फॉर्म. उसमें बॉडी लैंग्वेज भी होती है, उसमें आपके जेस्चर होते हैं, आप जिस तरह से फेस से जेस्चर बनाते हो, आप जिस तरह से आईज का मूवमेंट करते हो, उसके अलावा आपकी जो टोन होती है, आपका वॉइस का वॉल्यूम होता है. ओके, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज. कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें देखी जाती है. अब जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक फोटो दिया हुआ है और कौन बताएगा कि ये फोटो देखकर प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स के कौन सा व्यक्ति का आपको बिहेवियर कैसे लग रहा है. Sir, first one is nervous. Confident, someone has said second. Someone has said girl in circle. Good, good, good. और nervous sir, green file, confident जिसके पास हाथ में वो नर्वस है, वो नर्वस लग रहा है. गुड. और आप एक और एक थर्ड लेडी को देखोगे, जो एक सेंटर में एक लेडी बैठी है, वो आपको कहीं ना कहीं इस तरह से लग रही है कि वो सामने वाले से या तो जेलस है या उसके रेज्यूम में देख रही है. ओके, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी दिख रही है. सो यही सब चीजें होती है. मैंने एक पिक्चर ही बहुत ढूंढ कर निकाली है जिसमें सारी चीजें समझ में आती है. आपका जो कांटेक्ट होना चाहिए, आई कांटेक्ट, वो हमेशा नॉर्मल होना चाहिए. योर फेस शुड बी स्माइलिंग, not laughing. There is a difference between laugh and smile.
हंसता हुआ फेस होना चाहिए, मतलब पूरा आपके टीथ दिखे ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जस्ट अ स्माइल ग्रिम होनी चाहिए आपके चेहरे पे हल्की सी। उसके अलावा ओपन बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। आप अगर एरेक्ट होकर बहुत ज्यादा एरेक्ट होकर बैठे हो तो वो भी सही नहीं है, बहुत ज्यादा स्लाउच कर रहे हो आप, झुक कर बैठे हो तो वो भी सही नहीं है जो है। तो देन आपकी जो ब्रीथिंग है वो डीप होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एकदम सांस नहीं लेना चाहिए जल्दी जल्दी। देन इफ आपको अगर लगता है कि आपको पानी की जरूरत है तो पानी आप मांग सकते हैं जो आपके रिक्रूटर है उनसे। सो दिस इज द थिंग। देन कम्युनिकेशन, एज आई हैव मेंशनड इट टू यू, कि जो कम्युनिकेशन होता है आपका वो मैटर करता है। जो कम्युनिकेशन है आपका इंटरव्यूअर के साथ में मैटर करता है। और कम्युनिकेशन में सबसे एक दूसरा नंबर का रूल होता है कि लिसनिंग। ओके, यू शुड लिसन केयरफुली एंड पेशेंटली। लिसन करना, जो आपका जो ओपोनेंट है, जो आपका इंटरव्यूअर है, या आप जिनके भी साथ बात कर रहे हो, 70% आपको लिसन करना है, 30% आपको जो है तो खुद बोलना है। दिस इज दी रूल। ओके, सो और बहुत ज्यादा जैरगॉन यूज नहीं करना। जैरगॉन होते हैं ना, बहुत ज्यादा कुछ स्पेशलाइज्ड टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। देन हैंडशेक आपका हमेशा फर्म होना चाहिए, गुड हैंडशेक होना चाहिए। आई कांटेक्ट जो है तो इंटरव्यूअर से अच्छा रखना चाहिए, लेकिन एकदम घूर कर नहीं देखना चाहिए उनको। ओके, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट पोस्चर होना चाहिए, और आपकी जो बॉडी है वो मिरर होना चाहिए इंटरव्यूअर की। मतलब इंटरव्यूअर जैसे बैठे हैं आपने वैसे ही सामने बैठना चाहिए, उनको क्रॉस करके नहीं बैठना है। ओके, और आपके जो आंसर्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव रखने हैं आपको, एंथुजियाज्म शो करना है, और केयरफुली लिसन करना है सारी चीजों को। डीलिंग विथ नर्व्स, कई सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि इंटरव्यू में जाते हैं या किसी दूसरे आदमी के सामने, हमसे बड़े लोगों के सामने जाते हैं, तो दे यूजुअली गेट नर्वस। दैट वी शुड नॉट डू। ओके, नर्वस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर जो है तो लाइफ का एक पार्ट है और वो होना है। और जब तक हमको फेलियर नहीं होगा तब तक हम सक्सेस को समझ नहीं पाएंगे। सो हेंस वी शुड अंडरस्टैंड दिस। और इंटरव्यू आप चाहे पहला दो या 10वां इंटरव्यू दो, आपको हमेशा अच्छे से इंटरव्यू देना चाहिए। और हर इंटरव्यू से ये मत समझो कि आपको जॉब नहीं मिला तो अब क्या होगा, मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। नो, इट इजंट लाइक दैट। पहले इंटरव्यू में नहीं मिला, आप वहां पे सोचिए कि आपकी क्या क्या लैक्यूना था, आपकी क्या क्या गलती थी, और उसको करेक्ट करिए। ओके, सो दिस इज द थिंग, दैट हाउ यू कैन deal with your nerves, or how you can deal with the nervousness. Then closing the interview, जो भी इंटरव्यू का रिजल्ट हो अच्छे से क्लोजिंग करिए, स्माइलिंग फेस रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। ओके, मैनेजर से वो हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करिए उनसे। ओके, डोंट बी रूड, रूडनेस नहीं बतानी है उनको। या आपको लग रहा है कि आपको जॉब नहीं मिलने वाला है तो आप नर्वस होके निकल गए, दरवाजा पटक दिया। डोंट डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बी पॉजिटिव एंड बी पेशेंट। बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना है। इंटरव्यू कैवेट्स होते हैं कुछ कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है तो लिसन नहीं करते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम का जो है तो अराइज होते हैं। सेइंग वी इंस्टेड ऑफ रिफरिंग टू योर ओन ओके अचीवमेंट्स। देन ये बहुत सारी चीजें होती है, स्लाउचिंग नहीं करना चाहिए, फिजेट नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा हलना डुलना नहीं चाहिए। सो दीज आर दी थिंग्स फॉर you to understand. Now I would like, if you want to ask any question to me. Thank you, Here sir. we have finished the session. Thank you for your wonderful session. Now I would like to request all the students that those who want to ask the question, they can type their question in the chat box or can raise their hands. I will allow them to speak. फैसल जी आपको अनम्यूट करने भी दे सकते हैं। आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाथ हैंड रेज करिए, वो आपको अनम्यूट कर देंगे। Yes, Yunus, please. So, sir, there is a question from Muhammad Asim. How can overcome fear of interview? फियर ऑफ इंटरव्यू, एज आई मेंशन्ड, यही होता है टू डील विथ योर नर्व्स। जनरली फियर इसलिए आता है हमें कि हमको ये लगता है कि मेरा इंटरव्यू ये अगर सक्सेस नहीं हुआ तो मैं दूसरा इंटरव्यू देने के काबिल नहीं रहूंगा। लाइफ में इंटरव्यूज हो या कोई भी चीज हो, एग्जाम्स हो, लाइफ में पहली बार होता है लेकिन वो आखिरी बार नहीं होता है। फाइन,
सो जैसे मैंने बताया आपको कि प्रैक्टिस करिए, रिहर्स करिए, कंपनी के बारे में पता करिए, कंपनी के बारे में पता करने के बारे में अपनी वीकनेस आपको ओवरकम करिए, अपनी स्ट्रेंथ को आप किस तरह से कंपनी को बेनिफिट कर सकते हो, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी स्किल्स, अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा, इसको देखिए। और उसके साथ ही साथ उसको रिहर्सल करिए। जैसे रिहर्सल करने का मैंने तरीका आपको बताया है कि आईने के सामने रिहर्सल करिए पहले, उसके बाद में किसी फ्रेंड या घर वालों के सामने उसको रिहर्सल करिए, कि रिहर्स करके देखिए कि मैं किस तरह से जो है तो जवाब दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं हूँ। वीडियो बनाइए, अभी तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है हमारे पास में, स्मार्टफोन है, वीडियो बनाइए उसका, उस वीडियो को देखिए कि कहाँ पर आप जो है तो कमजोर पड़े, कहाँ पर आप जो है तो अच्छा बोल रहे हो, तो उस चीज को ग्रूम करिए। और बाद में डू नॉट हैव टू फियर, एक इंटरव्यू में फेल होने से जो है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको लाइफ भर जॉब नहीं मिलेगी। देयर आर सेवरल पीपल, उनको जो है तो पहले इंटरव्यू में फेलियर ही होता है, बट देन दे राइज लाइक अ स्टार, वो बाद में जो है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो डू नॉट एवर फील विद दी थिंग्स कि मैं फेल हो जाऊंगा इंटरव्यू में। सबसे मेन जो फियर होता है वो यही होता है कि मैं इंटरव्यू में बराबर नहीं बोला तो मैं आउट हो जाऊंगा। तो डरो ही मत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ओके, मुझे जॉब मिले या ना मिले, मुझे जो सबसे बड़ी चीज मिलेगी इंटरव्यू से वो ये है कि मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, सो ट्राई टू रिमेम्बर दिस थिंग। फाइन। सो इस तरह से आप अपने आप को फियर से दूर कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि अपना टाइम से पहले पहुंचिए आप। तो टाइम से पहले पहुंचने से क्या होता है ना, कि आप पहले जाके बैठ जाते हो, आराम से बैठते हो, उसके बाद में जो है तो वहां पे पानी पीते हो, अपने आप को फ्रेशन अप करते हो, और उसके बाद में आप धीरे धीरे जो है तो अपने डीप ब्रीथिंग करते हो। तो उस वजह से ये है कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। ओके, उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह से बड़ी कोई जात है नहीं। और सबसे ज्यादा जो हमें डर होना चाहिए वो अल्लाह ताला का ही होना चाहिए। बाकी दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं है जिसका हम डर होना चाहिए, बाकी चीजें हमको ऊपर छोड़ देनी चाहिए। Hope I have answered the question to brothers. Anyone else? Please type your question in the chat box. Okay, Asif, please. Sir, sir, I am asking a question. Yeah, please. सर, जो जिस अगर कंपनी सर जॉब को सॉरी सर सर जैसे मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ और फिर मैं अपनी जॉब को चेंज करना चाहता हूँ, तो इंटरव्यूअर जी मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई आर यू चेंजिंग ऑफ दिस जॉब, व्हाई शुड लीव दिस कंपनी। तो उस टाइम पे सर जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सर वो उसके बारे में थोड़ा। ओके फाइन। बहुत सारी जगह पर ये चीज क्वेश्चन अराइज होता है, और खास तौर से ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो है तो उनको जो है तो जॉब स्विच करना है। तो आप वहाँ पे ये बता सकते हो कि आप कितने दिन से जॉब कर रहे थे और आप जॉब क्यों छोड़ रहे हो। अगर, क्योंकि कई जगह ये होता है कि मतलब आपको लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिवली देना चाहिए। हमेशा जो है तो कंपनी जहां आप काम कर रहे थे उसके नेगेटिव पॉइंट नहीं बताना चाहिए। आप ये बता सकते हो कि सर आई वांट टू डेवलप मोर एंड एज योर आई हैव ऑलरेडी गेन माय एक्सपीरियंसेस and your organization is someone who is better in terms of market presence and all. So I would like to join this organization for my personal growth and for my which I can contribute to company, and where the company will also grow and I will also grow. So you have to give these kind of answers. Okay, क्योंकि कई जगह पर ये होता है कि कई आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि भाई आपको क्या सैलरी का तकलीफ था तो किसी और चीज की तकलीफ थी, तो आप बता सकते हो क्लियरली कि सर फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज आई एम ट्राइंग फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसीज। तो आपको वो ये पूछेंगे कि क्या आपको फ्यूचर में आप हमारी कंपनी भी छोड़ दोगे और दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगे, ऐसा क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है यहाँ पे। तो आपके पास उसका आंसर भी ये होना चाहिए कि सर एज फार एज कंपनी इज गोइंग टू लुक आफ्टर मी, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस कंपनी, I want to grow with you, growing organization, and I will contribute my 100% to develop this organization, to contribute in the development of this organization, so I can also grow and develop myself. इस तरह से, ठीक है। सो ये इस तरह के आंसर देना चाहिए, कभी भी इस तरह से आंसर मत देना मेरा सुपरवाइजर बहुत खराब था, मेरा जो है तो मैनेजर बहुत खराब था, मेरे से वो बराबर बात नहीं करता था, मेरे से बहुत काम लेता था। These kind of questions should not be you should not answer like these.
कि मेरे सीनियर्स बहुत ये थे, मुझे तंग करते थे या बहुत ज्यादा काम था, इस टाइप के आंसर कभी देने नहीं चाहिए। Last question, that why should we hire you, that interviewer asked. So what should we हाँ, respond? ओके, व्हाई शुड वी हायर यू, दिस इज समथिंग, ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है और जो आपने कंपनी का रिसर्च किया है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को रिसर्च किया है कि आपको जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी को रिसर्च किया है और आपकी स्ट्रेंथ और स्किल्स क्या है, वो आपने की है, तो आप उसको सेंटेंस बनाकर बराबर बोल सकते हो, सर द एक्सपीरियंस, द स्किल्स और स्ट्रेंथ्स व्हिच आई हैव गेन्ड through my academic or my career, I would like to benefit this organization as this organization is present in the market since this years। और इसी के साथ में जो है तो मैं अपना जो स्किल्स है, मेरी स्किल्स, क्योंकि मैं, अगर आप टीम प्लेयर हो तो बताइए, अगर वो आपकी जॉब जो है तो टीम प्लेयर वाले लोग चाहिए रहते हैं, तो बताइए कि आप जो है तो क्रिकेट वगैरह खेलते थे या आप ये ऐसे काम करते थे, आपने पोस्टर प्रेजेंटेशन टीम वर्क में किया है, तो वो चीजें बताइए और ये बता के करिए कि मैंने जो है तो मैं टीम प्लेयर बहुत अच्छा हूँ, तो मैं ये इसमें बेनिफिट दे सकता हूँ। आपकी अगर क्वालिफिकेशन में कोई ऐसी चीज है जो आपको, आप उसमें बता सकते हो, तो उसमें बताइए कि आप क्यों वो वहां पे वो कर सकते हो। तो ये सारी चीजों को आपको हाईलाइट करना है, जो आपने अपने रिज्यूम में ही लिखी है, उन्हीं चीज को आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपने अचीवमेंट्स। होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। With this, we are going to end the session now. Thank you Thank once you. again, Rahil sir, and thank you all the participants. Hope this session would be helpful for achieving interviews, and inshallah we will continue this session in future also. So thank you once again, and thank you everyone, and please share your feedback. Because I have shared the Google form in the chat box, so kindly share your feedback so that we can improve in future also. Thank you everyone.